Hello everyone. So you know that I'm doing previous year questions from state public service commission examinations, okay, including UPSC questions. Okay, so today we are going to see some more questions from this regards. So today we'll see some of the questions of the government system. Okay, so last class we have completed the questions of uh, preamble. Okay, today we'll start the government system. So let's see some more question from this topic. Okay, so the first question, you can see this question is already came in the IS exam. Okay, very latest question. It is 2021 question. Let's say, okay, so which one of the following is the best define the term state? Okay, you can read the options. A community of persons permanently occupying a definite territory independent of external control and possessing an organized government. Okay, a political organized people of a definite territory and possessing an authority to govern them, maintain law and order, protect their natural rights, and safeguards their means of sustenance. Okay, see, actually in the last some one person commented me there was some mistake in, I think, in the first question, or maybe in the first question I have mentioned that it's something scared. I have mentioned that. Okay, so it is actually not scared, it's actually sacred. Okay, its meaning is pavitra. Okay, it was regarding our constitution. So those who was following me, please correct from yourself. Okay, thank you for that student who has pointed out me, okay, my mistake. So it is good, like if I'm making any mistake, you please tell those mistakes so that I should not repeat again. Okay, thank for that student who has commented for that. Anyway, we'll see this question. A number of person who have been living in a definite territory for a very long time, or with their own culture, tradition and government. Okay, see, ये इस टाइप वाले क्वेश्चन में वेयर जहाँ पे स्टेटमेंट ढेर सारे होते हैं, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एक्चुअली इजी, ठीक है, बस हमें थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट होता है वो पता होना चाहिए। तो इसको आप पढ़ के ही इसका आंसर समझ सकते हो। Anyway, we'll see the explanation as well. We're just reading the options. We are trying to understand what is the options, what options are given. A society permanently living in a definite territory with a certain authority and executive responsible to the central authority and independent judiciary. Okay, देखिए अगर आप प्रियम्बल पढ़ोगे तो नॉट प्रियम्बल, प्रियम्बल में तो ढेर सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है, लेकिन जब आप अगर फंडामेंटल राइट्स पढ़ो, ओके, तो अगर मान लो आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, ठीक है, एंड इट इज इफ इट इज वायलेटेड बाय द स्टेट, ठीक है, तो जब भी हम स्टेट की बात करते हैं तो इट हैज टू बी गवर्नमेंट एंटिटी। ओके, प्राइवेट चीजों को हम लोग नहीं मेनली कंसिडर करते हैं। ओके, सो इफ एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी इज violating your fundamental rights, okay, you can go to the कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो स्टेट भी एक उसी टाइप का टर्म है। स्टेट मतलब उत्तर प्रदेश या फिर बिहार या फिर पंजाब की बात नहीं हो रही। स्टेट मतलब ये ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हेड ऑफ स्टेट इज द प्रेसिडेंट, तो हेड ऑफ स्टेट मतलब जो इंटायर कंट्री है उसके जो हेड होते हैं हु इज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वो वाली स्टेट की बात हो रही है कि व्हाट इज हाउ स्टेट इज द टर्म स्टेट इज डिफाइंड। ओके, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है, a community of a person permanently occupying a definite territory independent of external control and possessing an organized government,
ठीक है, देखिए ये तो जस्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। स्टेट, अभी जैसे मैंने आपको क्या बोला कि जो इंटायर कंट्री है उसका हेड कौन है, इज द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो उस पूरी टेरिटरी की बात हो रही है, वही चीज, एंड ऑब्वियसली इट हैज टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। इसी वजह से मैंने फंडामेंटल राइट वाला आपको एग्जांपल दिया है, सो दैट यू कैन क्लब विद दैट। आपको थोड़ा सा लग सकता है कि इस यहाँ पे फंडामेंटल राइट से क्या मतलब है, बट एक्चुअली जब आप फंडामेंटल राइट पढ़ोगे तो जैसे आर्टिकल 13 पढ़ोगे तो वहां पे डिफाइन किया व्हाट इज स्टेट। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली जस्ट बिगिनिंग। फंडामेंटल राइट आपके जहां से स्टार्ट होता है उससे जस्ट पहले वाला जो आर्टिकल है वहां पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सो इट्स ऑप्शन इज, its answer is A. Okay, so state is a community of a person more or less numerous permanently occupying a definite portion of territory independent or nearly so the external control and possessing an organized government to which the great body of inhabitant render habitual ओबीडियंस, ठीक। ये सब उतना अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ सकते हो क्या इसका मीनिंग है, ठीक है। द टर्म स्टेट is central to the study of political science, obviously. Following are the element of state: first, people, community of person permanently living there, obviously government होनी चाहिए, territory तो रहेगा जो कि democratic boundary that separated one state from other, ठीक है। अब इसको और अच्छे से बता, सोवरेनिटी होनी चाहिए। तो ये तीनों चारों पॉइंट अगर आप याद रखोगे तो कहीं और पे भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्टेट, so you can give the answer, okay। So it has the independent say in all domestic and external decision making, okay। So I hope you understood that what is this question। This is IS question, तो थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा IS वाले क्वेश्चन, बट ऐसा नहीं हर बार डिफिकल्ट नहीं होता है, इजी भी होता है, okay। Next question, which one of the following, sorry, which one of the most prominent element of state, ठीक है। अब स्टेट में जो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट क्या होता है, फ्लैग, कैपिटल, सोवर्निटी, हेड ऑफ स्टेट। तो आई थिंक यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। जो सोवर्निटी होती है, दिस इज एक्चुअली नो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द स्टेट। सोवर्निटी मतलब सोवर्ण, जब भी हम सोवर्निटी की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर किसी दूसरे का कंट्रोल नहीं है, ठीक है। हम हमारा मतलब इनसाइड द टेरिटरी हमारी गवर्नमेंट होगी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मतलब एक्सटर्नली जैसे जैसे ब्रिटिशर्स थे तो वो क्या कर रहे थे, वो रूल कर रहे थे बाहर से आके। उस टाइम पे वी आर नॉट सोवरेन, बट हमको जब इंडिपेंडेंस मिला, हमने अपना जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो वी मेड आवर सेल्फ एज अ सोवरेन कंट्री, मतलब कि हमारे हमारे ऊपर कोई बाहरी पावर का या किसी दूसरी कंट्री का कंट्रोल नहीं है, ओके। सो it is a sovereignty। So the state has four essential elements: population, territory, government, and sovereignty. Among them all, sovereignty is the most important element. India before 1947 was not a state because though it had the other three elements, सेम चीज जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, सो दैट्स व्हाई वी वर नॉट द सोवरेन कंट्री बिफोर 1947, ओके। वी हैड उस टाइम में हमारे पास पॉपुलेशन था, टेरिटरी था, गवर्नमेंट था, सब कुछ था, बट बाहरी रूल कर रहा था, तो इस वजह से इट वाज वी वर नॉट द सोवरेन कंट्री। द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, द सोवरेनिटी वाज मिसिंग बिकॉज ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया, ओके। सो द आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको। विद रेफरेंस टू द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, सेम चीज दूसरे तरीके से रिपीट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंडिया इज अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस, ओके।
sovereignty of India is curtailed due to its membership of Commonwealth nations. यस इंडिया इज अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस। यस देखिए, जब हम ब्रिटिशर्स सिर्फ इंडिया के ऊपर रूल नहीं कर रहे थे, वो और भी काफी कंट्रीज के ऊपर रूल कर रहे थे। इट वाज अराउंड 50-60 कंट्रीज के ऊपर वो रूल कर रहे थे। तो बाद में जब सारी कंट्रीज सोवरेन हो गए, आई मीन इंडिपेंडेंस सबको मिल गया, उनका ब्रिटिशर्स का रूल खत्म हो गया, तो वो सारी कंट्री मिलके एक जिसे बोलते हैं एक ग्रुप बना है, उसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ में वही कंट्रीज हैं जिसमें जो 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 कंट्री ब्रिटिशर्स के अंडर थी। ठीक है, तो यस इंडिपेंडेंस होने के बाद इंडिया जो है कॉमनवेल्थ नेशन का मेंबर बना। ठीक है, बट अब उसका मेंबर बनने की वजह से सोवरेनिटी ऑफ इंडिया इज कर्टेल्ड ड्यू टू मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे आप देखो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, तो उससे क्या, उसमें जाके पार्टिसिपेट करने से कोई हमारी सोवरेनिटी थोड़ी नहीं चली जाती है। ठीक है, तो उसका मेंबर हो या ना हो, उससे डजंट रिलेटेड टू द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज करेक्ट। ठीक है, the word sovereign implies that the India is neither dependence nor a dominion of any other nation, but an independent state. Though in 1947 India declared the continuation of her full membership of the Commonwealth nations and accepted the British Crown as head of the Commonwealth. ठीक है, और जो ब्रिटिश क्राउन है वो अभी भी it is a head of Commonwealth. This extra constitutional declaration does not affect India's sovereignty in any manner. ठीक है, even though जो ब्रिटिश क्राउन है it is a head of the Commonwealth nations, but इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के ऊपर वो रूल कर रहे हैं, something like that. So it does not affect the sovereignty of India. So the answer is A here. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ पे मैं बार बार बोलूंगा ना, आप देखोगे कि जितने भी PSCs होती हैं, आई थिंक साउथ की तो नहीं, जैसे तमिलनाडु जो साउथ स्टेट कंट्रीज है उनकी नहीं, बट जो हमारे नॉर्थ स्टेट हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड, इन सारे जो ये जो सारे एग्जाम्स हैं, इनके जो इन स्टेट्स में जो PSCs हैं उसमें जो एग्जाम्स होते हैं उसके क्वेश्चन प्लस UPSC के क्वेश्चन ये सारे इसमें इंक्लूड हुए हैं। तो आप जिस भी स्टेट की हो, ओके, सो इट विल हेल्पफुल फॉर एवरीवन। ओके, ऐसा नहीं कि आप ये सोच रहे कि अरे झारखंड का क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं, अगर कोई मान लो यूपी का है या फिर कोई बिहार का, कॉन्सेप्ट एक ही चीज़ है। ठीक है, तो जस्ट फॉरगेट अबाउट किस PSC में आया हुआ है, बस आप ये इसको जानने का मतलब ये कि हाँ ये क्वेश्चन वहाँ पे भी आया हुआ है, इसका मतलब क्या, दिस कैन कम इन आवर एग्जाम एज वेल। ओके, तो इस तरीके से सोचना, ऐसा नहीं है कि दूसरी स्टेट का है तो हमें नहीं पढ़ना, इससे कोई मतलब नहीं है। यू शुड टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स। ओके, fourth question, the state is everywhere, it leaves hardly a gap. This statement explains the concept of welfare state, कम्युनिस्ट स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट, पुलिस स्टेट। ओके, देखिए एक चीज़ और मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि मैं आपको ऐसे एक एक ऑप्शंस के बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं लेक्चर सीरीज भी कर रहा हूँ, कंप्लीट लेक्चर सीरीज, तो वहाँ पे जो थ्योरी वाला पार्ट है वो कंप्लीट होगा। बट हाँ, मेजर जो भी एक्सप्लेनेशंस होते हैं वो मैं जरूर से आपको दूंगा। ठीक है, जो भी एक्सप्लेनेशंस हैं उसमें ऑलमोस्ट आपका कवर होगा, बट ऐसा नहीं कि मैं एक क्वेश्चन को 10 मिनट तक समझा रहा हूँ, ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है। मेरा फोकस ये है कि आपका लास्ट 30 ईयर के जो क्वेश्चंस हैं डिफरेंट PSCs में जो आए हुए हैं वो सारा एक जगह पे आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आप एक 2-4 सिटिंग में बैठ के, मतलब 10 दिन में 15 दिन में बैठ के एक बार में वन गो में आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हो एक जगह पे। ठीक है, ऐसे मोटी मोटी बुक्स होती हैं उसको लेके बैठ के करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट एक्चुअली वी शुड डू फ्रॉम द बुक इटसेल्फ। ठीक है, बट ठीक है, अगर आपका बुक पढ़ने का मन नहीं है तो आप सोए भी उसको देख के
क्वेश्चंस को रिकॉल कर सकते हो. एक्चुअली कॉन्सेप्ट, आई विल नॉट सेट द क्वेश्चंस, द कॉन्सेप्ट present in the question, that is actually more important. Okay, fine. Next question. The state is everywhere, it leaves hardly a gap. This statement explains the concept of welfare state, communist state, democratic state, police state. तो देखिए हमारा जो the state is everywhere, it leaves hardly gap. ओके ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ओके इट इज एक्चुअली वेलफेयर स्टेट. ठीक है, हमारा जो कंट्री है इट इज लाइक वेलफेयर ऑफ द पीपल. मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आप चाइना में देखो तो चाइना में की गवर्नमेंट है, इट्स कम्युनिस्ट गवर्नमेंट. देखिए वो डेवलपमेंट कर रहा है, बट अगर मैं इंडिविजुअल के वेलफेयर की बात करूं तो इट इज नॉट लाइक दैट. ठीक है, वो एक्सप्लॉइट भी बहुत ज़्यादा करता है. ठीक है, आप मतलब बहुत ज़्यादा उनसे काम करवाते हैं, चीप लेबर है वहाँ पे, और उनको इतनी अच्छी सैलरी भी नहीं देते हैं, और नो जो वर्किंग आवर्स है ना, इट इज समटाइम मोर देन 12 आवर्स, पर बस वो जाते हैं, काम करते हैं, सोते हैं, फिर जाके काम करते हैं. ऐसा है वहाँ पे. ठीक है, तो बट हमारे यहाँ से इंडिया में नहीं है. ठीक है, जैसे डीपीएसपी किस चीज, इट इज फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल. ठीक है, बट अब इफ यू सी द you say constitution of China, you will not find any DPSP there. Okay, so उनकी गवर्नमेंट जिस भी तरीके से चाहती है उस तरीके से यूज कर सकती है वहाँ के लोगों को. The state is everywhere, it leaves hardly a gap. This statement explains the concept of welfare state. ठीक है, सेम चीज है. So okay, so the answer is A. Next, the Constitution of India provides which type of governance system? I think इसका आंसर आप आराम से दे सकते हो. डेमोक्रेटिक, प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री, सेमी डेमोक्रेटिक. ठीक है, आप थोड़ा सा भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. तो ये हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म का गवर्नमेंट होता है. ओके, आपको पता है कि लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, फिर लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें प्राइम मिनिस्टर चुन के आता है. ठीक है, जब पार्लियामेंट्री की बात होगी तो वी विल हैव प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज प्रेसिडेंट. बट जहाँ पे प्रेसिडेंशियल होता है वहाँ पे प्रेसिडेंट होता है. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर आई होप नहीं होता. और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जो हेड ऑफ स्टेट होता है, इट इज मतलब हेड ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज हेड ऑफ स्टेट, दोनों जो होता है प्रेसिडेंट होता है. बट पार्लियामेंट्री फॉर्म में प्रेसिडेंट जो होते हैं वो ही इज हेड ऑफ स्टेट, बट जो प्राइम मिनिस्टर होता है he or she is the head of government. Okay, so we have parliamentary system. We know that there are mainly two type of system of governance: parliamentary and presidential. India follows parliamentary form of government, which is influenced by the parliamentary system of the United Kingdom. अब देखिए ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, वो चीज़ जो छोड़ के गए हमको, हम उसी को मॉडिफाई करके है ना कंटिन्यू किए हैं. वी हैव नॉट चेंजेस दैट. इसका रीजन भी एक है कि हमारे जो लोग हैं उस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो गए थे. अगर उनको ना एकदम कोई नई चीज़ ला के दे दो, उस टाइम उतनी लिटरेसी भी नहीं थी. अगर आप उनको इवन देखो आज भी काफ़ी पढ़े लिखे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है ना फंडामेंटल राइट्स और बहुत ढेर सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता है. तो आप सोचो कि जो लोग इलिटरेट हैं या फिर कम पढ़े लिखे हैं उनको क्या पता होता होगा. तो आप खुद सोचो ना कि अगर कोई चीज़ ना 200 साल से चलती आ रही है फिर एकदम से चेंज कर दो तो फिर क्या होता. सो दैट्स वाई आर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर व्हाट दे डिड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, दे हैव टेकन लॉट ऑफ थिंग, especially the government system they have taken from the government of India Act 1935. Okay, because our people were used to of that system, and that system has been little bit modified, and they have presented in such a manner that is actually useful for us. So that's why it is like it has been influenced by the UK. In parliamentary system, the executive branch derive its democratic
legitimacy from legislature and is also accountable to the legislature. ठीक है, मतलब वही बोल रहा है कि जो हमारा डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी होती है, मतलब इलेक्शन होता है, फिर पीपल इज वोटिंग एंड उनको चुन कर लेजिस्लेचर बनाते हैं, मतलब लोकसभा या फिर जो हमारा स्टेट असेंबलीज होती हैं वहाँ पे भेजते हैं। फिर वो जो होते हैं वो गवर्नमेंट तो चलाते ही हैं, प्लस हमारे लिए लॉज भी बनाते हैं इन द legislature. So that's why they are also accountable to the legislature. Okay. देखिए, जो जैसे यूएस की बात आप करो, यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म होता है, जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो लॉ नहीं बनाता है, वो वहाँ की सेनेट का काम है। जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा होता है, तो उनके यहाँ भी लोकसभा और राज्यसभा, जैसे सेनेट और कांग्रेस वहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सेनेट इज द अपर हाउस और कांग्रेस इज द लोअर हाउस। तो जो वहाँ पे आई थिंक इलेक्शन होता है, इट इज फॉर द कांग्रेस, और वहाँ से उनकी दो पार्टी है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन, वो दोनों फाइट करते हैं, तो उसका ही प्रेसिडेंट बनता है, चेंज होता है उन्हीं दोनों पार्टी में से। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो हमारे ट्रम्प है वो किस पार्टी के हैं, वेदर ही इज फ्रॉम डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। तो जैसे मान लेते हैं यूएस में प्रेसिडेंट बन के आ गया, तो वो ही इज नॉट गोइंग टू मेक अ लॉ, ही इज नॉट गोइंग टू सिट इन द सेनेट। ओके, बट हाँ, लेकिन जो लॉ कौन बनाएगा, सेनेट बनाएगा वहां का। ठीक है, वहां पे भी वो मतलब ऐसा है कि लो सेनेट में पास होगा, फिर उसके बाद कांग्रेस में पास होगा, इसके बाद प्रेसिडेंट हैज टू साइन। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो है क्या बोलते हैं, जाके सेनेट में बैठ के लॉ बनाएगा, ऐसा नहीं है, बट यस ही विल साइन। ओके, एंड ऑल्सो if president of US is doing कुछ बोलते हैं कि हाँ ये चीज करनी है हमें, तो वो चीज भी स्क्रूटनाइज होगा बाय इट विल बी स्क्रूटनाइज बाय द सेनेट, एंड वो जब अप्रूवल वहां पे भी आई थिंक देयर इज 2/3 मेजोरिटी, ऐसा सिस्टम है। ठीक है, आप जस्ट ये चीज आप एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, आई माइट बी रॉन्ग, बट जहां तक मुझे पता है कि अगर प्रेसिडेंट कुछ डिसाइड करता है तो वो सेनेट में जाएगा, फिर वहां के लोग देखेंगे। क्योंकि देखिए उसका रीजन ये है कि आपको पता होगा कि वहां पे इट्स यूएस से, लाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां पे 50 स्टेट मिलके एक कंट्री बनाएंगे, अलग अलग पहले कंट्री थी सारी, सब मिलके एक उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाया। हर स्टेट से दो दो उनके मेंबर्स होते हैं, चाहे बड़ा स्टेट हो छोटा स्टेट हो, तो टोटल 100 पीपल होते हैं उनके सेनेट में। ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द स्टेट, चाहे छोटा स्टेट हो बड़ा स्टेट हो। अब मान लो प्रेसिडेंट कोई चीज कर रहा है, तो जो स्टेट है उनकी उनको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, उनको ज्यादा नुकसान ना हो वहां के लोगों को, इस वजह से अगर प्रेसिडेंट कुछ डिसाइड करता है तो दे विल चेक, ओके, इफ दे विल फाइंड कि हाँ ये चीज ठीक है, फिर आई थिंक वहां पे 2/3 मेजोरिटी वोटिंग होगी, हो जाएगा, उसके बाद अगर वो पास हो जाएगा तो ठीक है, हो सकता है। वैसे ही वाइस वर्सा होता है, वो लोग अगर कोई चीज करता है तो प्रेसिडेंट हैज टू साइन। तो इस तरीके से वहां पे जैसे थोड़ा सा जो यूएस का प्रेसिडेंट उतना पावरफुल नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में हमारे प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो होता है ऑर्डिनरी बिल के लिए। उसमें जैसे मान लो कोई ऑर्डिनरी बिल है और वो प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए गया है, तो ही कैन कीप दैट बिल इनटू हिज पॉकेट, मतलब ऐसे बोलने के लिए है कि पॉकेट में रख सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो पॉकेट में रखेंगे, बट द मीनिंग इज दैट वो कितनों भी टाइम के लिए अपने पास रख सकते हैं, ना ही लोकसभा राज्यसभा उसमें कुछ उनसे पूछ ही नहीं सकता है कि आप क्यों नहीं भेज रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मनी बिल के केस में नहीं होता, बट यस फॉर द ऑर्डिनरी बिल द पॉकेट वीटो हैज द विद द इंडियन प्रेसिडेंट। उस तरीके से यूएस के प्रेसिडेंट के पास इस टाइप का कुछ पॉकेट वीटो टाइप का नहीं है। ठीक है, तो मैं इतना चीजें इस वजह से बता रहा हूँ कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री फॉर्म एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म। जो यूएस का प्रेसिडेंट है, ही इज नॉट अ लॉ मेकर, ही इज एग्जीक्यूटिव। ठीक है, वो गवर्न करेगा गवर्नमेंट को, कंट्री को चलाएगा, लेकिन लॉ नहीं बनाएगा। लॉ बनाने का काम कौन है, सेनेट का, वहां की जो राज्यसभा है, वहां का जो अपर हाउस है।
लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म में ऐसा नहीं है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ही इज फ्रॉम लोकसभा और ही कैन फ्रॉम द राज्यसभा, he will he will make a law, okay, he or she will make a law, also he will run the government as well, ठीक है। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट लोकसभा, मान लो कि फाइनेंस से रिलेटेड कोई बिल है तो इट हैज टू बी प्रेजेंट बाय फाइनेंस मिनिस्टर, देन लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट का एसेंट लगने के बाद वो एक्ट लॉ बन जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यूएस में प्रेसिडेंट जो होता है वो ही इज नॉट अ लॉ मेकर नहीं है, वो बस गवर्नमेंट चलाएगा, कंट्री चलाएगा। बट पार्लियामेंट्री फॉर्म में स्पेशली इन इंडिया ऐसा नहीं है। Prime Minister will run the government as well as they will also form the they can also make the law, okay, इसके बारे में बता दिया। But I think you got like what I'm trying to say, that if anyone not understand, you can just mail me or you can comment. I will make a separate video for that and I will just upload with this regard, okay, fine। Next question, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, which unitary element are found in Indian federal system, okay, unitary elements, they are saying written constitution, rigid constitution, supremacy of constitution, appointment of governor, decentralization of power, president approval on the state bill, constitutional crisis, one supreme court, ठीक है। अब ये यूनिटरी एलिमेंट आर फाउंड इन इंडियन फेडरल सिस्टम। अब इसमें से हमें ये बताना है कि ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, ठीक है। बट अब हमें बताना है कि कौन कौन सी चीजें इसमें से यूनिटरी एलिमेंट हैं, ओके। तो इसमें देखिए जो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ये यूनिटरी नहीं है, मतलब और भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा भी नहीं है, ठीक है। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नो। देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ये यूनिटरी फीचर है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ये भी यूनिटरी फीचर है, और प्रेसिडेंशियल अप्रूवल स्टेट बिल ये भी यूनिटरी एलिमेंट है, ठीक है। बट कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नो। वन सेकेंड देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। प्रेसिडेंट, देखिए प्रेसिडेंट अप्रूवल ऑन द स्टेट बिल, नहीं ये दिस इज नॉट द यूनिटरी, ठीक है। ये चीज नहीं है, ठीक है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ये जो हमारे यूनिटरी फीचर में आता है, और जो हमारा वन सुप्रीम कोर्ट ये भी यूनिटरी एलिमेंट नहीं है, ओके। सो इस हिसाब से अगर आप देखो कितना, फोर्थ, फिफ्थ एंड सेवंथ ये जो है हमारे यूनिटरी एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ लेते हैं जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स ऑल यूजुअल फीचर्स ऑफ द फेडरल, पहले मैंने आपको बता दी कि सारे दे आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टू गवर्नमेंट्स, डिवीजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, rigidity of constitution, independent judiciary and bicameralism. However, Indian constitution also contain a large number of unitary feature, जैसे कि strong center, single constitution, single citizenship, flexibility of constitution, integrated judiciary, appointment of state governor by the center, all India services, emergency provision, etc. So these all the यूनिटरी फीचर्स, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर डी हो जाएगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। आई एम नॉट एग्जामिनर, आई विल नॉट से कि यही वाला क्वेश्चन आएगा, हाँ ऐसा आ सकता है, ऐसा बोल सकता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द Indian polity is an essential feature that indicates the it is फेडरल इन कैरेक्टर, ठीक है। पढ़ते हैं, देखिए BIS 21 का क्वेश्चन है, फेडरल कैरेक्टर क्या है। द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्डेड,
The union legislature has elected representative from the constituent unit. The union cabinet can have elected a representative. The fundamental rights are enforceable of law. ठीक है, तो अब फेडरल कैरेक्टर के बारे में बात करना है. देखिए जो हमारा पहला वाला द इंडिपेंडेंस ऑफ judiciary is safeguarded. This is nothing but is the federal character. बाकी ये तीनों नहीं, they are not the federal character. Which one of the following characteristics is not true for unitary form of government? Okay, swift decision, flexible, ideals for large countries, uniformity of laws. Okay, and none of the above or more of one of the above. तो ये देखिए यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ट्रू फॉर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो जो हमारा आइडियल फॉर लार्ज कंट्रीज ये नहीं है, बाकी सब है. ओके, सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आर स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी प्रोविजन, सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ऑल इंडिया सर्विसेज. देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो चीज़ें थी वही चीज़ें सब चीज़ें रिपीट हो रही हैं. इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, पार्लियामेंट्री अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, vote over state bills. It cannot be outrightly said that it is ideal for large countries. ठीक है, मतलब जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसके लिए ट्रू नहीं है, तो जो बड़ी कंट्रीज के लिए मतलब इट इज नॉट आइडल. ओके, सो द आंसर इज. देखिए जो भी एक्सप्लेनेशन है इसको आप जरूर से पढ़िएगा, क्वेश्चंस के आंसर तो आपको पता चल जा रहे हैं. ठीक है, बट द थिंग इज दैट जो भी एक्सप्लेनेशन दिए हुए अगर मैं उसको नॉर्मली पढ़ भी रहा हूँ तब उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो चीज़ें एक्सप्लेनेशन में दी हुई हैं वो चीज़ आपके एग्जाम में आ जाए. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग द क्वेश्चन, ओके इट्स फाइन, यू आर डूइंग द क्वेश्चन, उसका तो कॉन्सेप्ट आपको मिल ही रहा है, बट अगर आप एक्सप्लेनेशन भी साथ में पढ़ते जा रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा. मतलब एक क्वेश्चन में आपको सिर्फ वो तो पता चल ही रहा है, प्लस उसके एक्सप्लेनेशन में 3-4 चीज़ें और दी हुई होती हैं, तो आपको वो भी चीज़ें पता चलती है. इस वजह से ना एक्सप्लेनेशन को भी देखना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस? ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रूल ऑफ लॉ, रेड टेपिज्म. ठीक है, तो ये जो रेड टेपिज्म है ये इट इज नॉट फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस. बाकी सारी होता है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, तो आप वैसे भी इसको कर सकते थे. ठीक, रेड ट्रेपिज्म रिफर्स टू एक्सेसिव रेगुलेशन विच हिंडर और प्रिवेंट एक्शन और डिसीजन मेकिंग. मतलब ना बहुत ज्यादा एक्शन कर रहे हो किसी चीज को लेके, तो वो दैट इज कॉल्ड रेड ट्रेपिज्म. Thus it is not a feature of good governance. On other hand, accountability, transparency, and rule of law are features of good governance. ठीक है, so red tapeism is not the feature of good governance. Next, which one of the following is not the feature of Indian Constitution? Okay, parliamentary government, presidential government, independent of judiciary, फेडरल गवर्नमेंट. ओके, इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ. देखिए मैंने यूट्यूब वगैरह में देखा है कि पीपल आर मेकिंग videos of 10 hour, 20 hour, 30 hour, 40 hours video, even 45 hours video. I have seen that. Okay, so yeah, I can also make that kind of video, but I have also seen I have went through those videos. They might be good wise, content wise, and whatever it is, but
what problem I have faced with those videos. Like suppose if you want to finish those videos, so this is for sure. If 20 hour or 30 hour video you cannot complete in one sitting. Okay, so you have to sit for many hours, like एक घंटे का कर लो या दो घंटे का कर लो, इस तरीके से करके आप वैसे कंप्लीट कर सकते हो। मैं ऐसे किसी को बोल नहीं रहा हूँ कि आप मत बनाओ या फिर करो, बट अगर 30 मिनट का वीडियो या फिर 40 मिनट का वीडियो, जैसे एक आइडियल, मैं टीचर रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, तो मैंने देखा है कि वहाँ पे जो क्लासेस होती हैं 45 मिनट्स की होती हैं, ठीक है। सो द आइडियल क्लास टाइम इज एक्चुअली 45 मिनट, तभी तो वहाँ पे 45 मिनट का होता है, नहीं तो 2 घंटे 3 घंटे का भी होता है। मैं वहाँ पे कभी कभी एक्स्ट्रा क्लासेस लेता था, लाइक 3 आवर 4 आवर का। पीपल वर गेटिंग बोर विद दैट, ठीक है। तो मी आई डोंट नो व्हाट आई विल डू इन फ्यूचर, बट मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपका वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा का ना हो, कोई सा भी। और कुछ ऐसी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिसमें थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट this 10 hour 15 hour 20 hour video, I'm not thinking to make those kind of video. Okay, so whatever thing I will do, that 30 minute 40 minute or maximum of 1 hour. Okay, so that if anyone is watching, he or she can finish in one go. Okay, so you might get sometime get a video of 10 minute or 15 minute, or maybe you can get the video of 1 hour in the same playlist as well. Okay, but I will not make very big or very lengthy kind of video. Okay, so like this video is almost 37 minutes is running. Okay, so I will finish fast so that I can finish in less than 1 hour. Okay, fine. So which is not the feature of Indian Constitution: parliamentary government, presidential government, independence of judiciary, federal government. So it is actually the presidential government. It is not the feature of Indian Constitution. ठीक है, presidential government नहीं है हमारे यहाँ, it's a parliamentary government. So presidential form of government is not feature of Indian Constitution. Parliamentary government, independence of judiciary and federal government are the characteristics of Indian Constitution. ठीक है। और देखिए ये मैं इस टाइप का जो लेक्चर सीरीज है, पॉलिटी और हिस्ट्री, अब जो लोग देख रहे हैं उन्हें पता होगा ना, ज्योग्राफी सबके हैं, तो अगर आप ये सारे कर लेते हो तो आपको फिर दूसरे प्रीवियस ईयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एनीवे अभी तो मैं प्रीवियस ईयर कर रहा हूँ, मैं लेक्चर्स भी शुरू किया, सभी करूंगा। ओके, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, out of the following statement, choose the one that bring out the principle of underlying the cabinet form of government. ठीक है, अब देखिए what is cabinet form of government, 2017 IAS का क्वेश्चन है। So an arrangement of minimum for minimizing the criticism against government which whose responsibility are complex and hard to carry out to the satisfaction of all. Okay, so a mechanism for speeding up the activities of the government whose responsibilities are increasing day by day. The mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of the government to the people. Okay, a device for strengthening the head of the government whose hold over the people is in a state of decline. ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, बट वी कैन डू दैट। देखिए जो हमारा कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, इट इज एक्चुअली डूइंग अ मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ओके, जिसे हमें पता है ना, हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे पार्लियामेंट्री वर्ड है यहाँ पे, तो इस वजह से ऐसा, इस वजह से, बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट वहाँ पे कैबिनेट भी होती है। ओके, इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। So the answer is C. Okay, parliamentary system of government is also known as cabinet. You know that. Okay, cabinet होता है of government or responsible government. This type of government is responsible to the people.
to the popular house of legislature and remains in the power till it has majority in the house. देखिए अब जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है कि जैसे 273 मेंबर्स चाहिए होते हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए. द मोमेंट दे विल लूज द मेजोरिटी, उससे कम होगा तो जो हमारी पूरी कैबिनेट होती है, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन. ठीक है, स्टेट में चीफ मिनिस्टर एंड लोकसभा में, सेंटर में प्राइम मिनिस्टर. ओके, सो द मोमेंट देयर इज दे विल लैक द मेजोरिटी, इट विल जो गवर्नमेंट गिर जाती है, ऐसा नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है. ओके, फिर उसके बाद he or she has to prove their majority. अगर वो मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो he has to resign. ठीक है. Thus, the cabinet form of government is a mechanism to ensure collective responsibility of the government to the people. In which report of the second administrative reform commission, barriers a good governance of India have been identified. अब देखिए ये सेकंड ARC की बात कर रहा है. अब ऐसा नहीं कि आप जाके ARC रिपोर्ट पढ़ने लगो, पढ़ सकते हो, बट आप कोई सी भी बुक पढ़ोगे तो वहां पे थोड़ा थोड़ा दिया रहता है. जैसे एक माथुर की बुक है ना, गवर्नेंस टू गवर्नेंस, उसको आप पढ़ोगे तो उसमें शॉर्ट में दिया हुआ है, तो वहां से भी आप कर सकते हो, क्योंकि दीज रिपोर्ट्स आर वेरी लेंथी डॉक्यूमेंट्स, so जरूरत नहीं है करने का. So ethics in governance, citizen-centric administration, the heart of the governance, promoting e-governance, local governance. ठीक है, तो इसका एक्चुअली जो ARC सेकंड ARC रिपोर्ट है, ओके, वो बोलते हैं सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, द हार्ट ऑफ द गवर्नेंस. ओके, सो द आंसर इज B. So in the report 12, citizen-centric administration, the heart of the governance, the second ARC reform commission barriers a good governance in India have been identified. It also describes the precondition for the good governance. Next, there is parliamentary system of government in India because Lok Sabha is elected directly by the people. Parliament can amend the constitution. Rajya Sabha can be dissolved. Council of Minister is responsible to the Lok Sabha. ये तो नहीं होगा, राज्य सभा हमारा dissolve नहीं होता, it's a permanent house. Okay, so the parliamentary system, there is a parliamentary system of government in India because देखिए इसमें जो parliament can amend the constitution. This is the correct one. Okay, so the answer is B. अब इसको चलिए पढ़ लेते हैं. A parliamentary system of government is a system of democratic government in which the member of the executive are taken from legislature and are accountable for the same. Therefore, the executive council of ministers is responsible to the Lok Sabha, which is House of People. Okay, next, the main advantage of parliamentary form of government is that the executive and the legislature work independently. It provides community of people, community of policy, and is more efficient. The executive remains responsible to the legislature. The head of the government cannot be changed without the election. Okay. So the main advantage of parliamentary form of government is that the executive remains responsible to the legislature. Okay, this is the main thing. One of the main advantage of the parliamentary form of government is that the executive remains responsible to the legislature. Yes, this result in the formation of responsible government. बिल्कुल सही बात है. In which a government system is executive derives its legitimacy from the legislature.
ठीक है, ये इससे पहले भी हम लोगों ने इसको देख चुके हैं, बट ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है तो विल सी दैट. Okay, next question and the last question for this video. This took a lot, I mean 45 minutes, more than 45 minutes anyway. In the context of India, which of the following principles are implied institutionally in the parliamentary government? Okay, members of cabinet are the member of parliament. Ministers hold the office till they enjoy confidence in the parliament. Okay, cabinet is headed by the head of the state. थर्ड तो सीधा गलत है, ऐसा तो नहीं होता है. ओके, ठीक है, जो द कैबिनेट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. सो ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ठीक है, ये भी गलत हुआ, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा. ठीक है, सिंपल एलिमिनेशन मेथड्स आप कर सकते थे. सो पहला सही है, मेंबर ऑफ cabinet are the member of parliament. Yes, minister hold office till they enjoy confidence in the parliament. In parliamentary system, the Union Council of Ministers exercise executive authority. The Council of Ministers is responsible to the lower house of the parliament. Is called Lok Sabha, which is House of People. Any minister who is not the member of neither house of parliament for a 6 consecutive months. देखिए, अगर कोई पर्सन है वो किसी भी वो ना ही लोकसभा का ना ही राज्यसभा का, लेकिन वो मिनिस्टर बन सकता है 6 महीने के लिए. उसके बाद उसको आगे कंटिन्यू करना है तो किसी भी एक हाउस में चुन के आना पड़ेगा. ठीक है, वो स्टेट लेजिस्लेचर में भी ये चीज होती है. सेल एट द एक्सपायरेशन ऑफ, देखिए ये सब चीजें जब हम लोग लक्ष्मीकांत को करेंगे तो वहां पे सब चीजें बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग. Okay, so at the expiration of that period cease to be a minister according to Article 75 clause 5. According to Article 75 clause 3, the Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of People. Okay, ठीक है, ये सही है, बाकी ये गलत है. Okay, head of state is a president. ये नहीं होता, this is ये होता है, but he is not the head of, he is not headed by the cabinet, is not headed by the president. Okay, so I think this is the end of the video. Thank you.